Yes, class. Today we are going to start with a new topic, the French Revolution. Good morning, all of you. Welcome to my class. The French Revolution in history is very important topic. So listen to me very carefully. I have prepared my notes so that it may help you out. Clear, students? Listen to each and everything very nicely because the questions are based upon it. Okay, let us start with the part A, that is the social scenario of France before the revolution. What was the condition of society before the French Revolution? Before 1789 in France, society and the institutions were called the old regime. जो ये आपकी society थी और institution थे France में, they were called by the name of old regime. It was based on the feudal system of the Middle Age, in which the workers or the peasants were called the vassals. Feudals were given a piece of land in return for serving the king. The French society was divided into three parts. First part is clergy. Clergy पता है कौन होते हैं? जो लोग चर्च के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं. They are called the clergies. ठीक है. Second part was the king and the third part belonged to businessmen, merchants, lawyers, peasants, artisans, landless laborers and servants. 90% of the French society consisted of the peasants, and very few people have their own land and they used to cultivate on it. Is it clear to you? Seventh point is 60% of the land was owned by the nobles. Yes, जो 60% लैंड थी ना वहाँ पे वो कौन हैंडल कर रहा था? आपका nobles हैंडल कर रहे थे. The clergymen used to lead a very luxurious life and they were not allowed to pay taxes, whereas the other third class was there to pay the taxes. Okay, clear to you everybody? Now let us move further. Nobles were like the feudals. They used to collect taxes from the peasants. Miserable life was led by the peasants. They used to do hard work in the fields, nobles' house and serve the army. They work in public project also. People used to pay the direct tax, which was called the tally. Indirect taxes were taken from the people on everyday consumption, things like salt and tobacco. डायरेक्ट टैक्स तो सबको पे करना पड़ता था, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स था, जो हम रोज़ की ज़रूरत की चीज़ों को मतलब यूज़ करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट और टबैको, उस पर भी वो लोग क्या लेते थे? टैक्स लेते थे. जो आपका थर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था ना, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, बोथ सोशली एज वेल एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम. इज़ इट क्लियर एवरीबडी? ओके, मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रही हूँ आपके साथ. सोशल कंडीशन बिफोर द रेवोल्यूशन क्या थी फ्रांस की? सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Before 1789 in France, the society and the institutions were called by which name? Old regime. It was based on the feudal system of the Middle Age. जो Middle Age के अंदर feudal system prevalent था, उसके ऊपर ये आपका France society based थी, in which the workers or the peasants were called vassals. जो आपके workers थे और peasants थे, they were called by the name of vassals. Feudals were given a piece of land in return for serving the king. जो feudals थे वो उनको king की तरफ से एक piece of land दी जाती थी और वो उस पे क्या करते थे? सर्व करते थे. French society was divided into three parts. First part क्या
था आपका क्लर्जी का, सेकंड क्या था किंग का, और थर्ड पार्ट किसका था आपका बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, पेजेंट, आर्टिशियन, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। जो 90% लोग थे आपके फ्रेंच सोसाइटी के वो कौन थे आपके पेजेंट्स। और इस वेरी फ्यू पीपल हैव देयर ओन लैंड एंड दे यूज टू कल्टिवेट इट। 60% of the land was owned by the nobles. The clergymen used to lead a very luxurious life. They were not allowed to pay heavy taxes. Nobles were like the feudals, they collect taxes from the peasants. Miserable life was led by the peasants. They used to do hard work in the field of noble's house, serve the army, work in the public project, etc. People used to pay direct tax, which was called as tally. Indirect tax was taken from the people on everyday consumption on the things like salt and tobacco. The third section of the society had to face many problems. Is it clear, everybody? Okay. Now we are going to see the background of revolution. अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे बैकग्राउंड प्रिपेयर हुआ था रेवोल्यूशन के लिए. Okay class, now let us see. Louis XVI belonged to a Bourbon dynasty. He ascended the throne of France in 1774. जो एक किंग था लुइस 16 वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? बोरबॉन डायनेस्टी को. और उसने फ्रांस की थ्रोन को कब असेंड करा था? 1774 पे. और जब उसकी एज कितनी थी आपकी? 20 years of his age he ascended the throne. He was married to an Australian princess by the name of Marie Antoinette. When Louis XVI became the ruler at that time, the treasury was empty. In spite of the financial loss, huge amount was spent on maintaining the luxuries of the huge palace. Louis XVI helped 13 American colonies to achieve independence from the Britain because जो ब्रिटेन किसके एनिमी थे? कॉमन एनिमी थे फ्रांस की एज वेल एज अमेरिका की. इन डूइंग सो फ्रांस वाज बर्डन बाय मोर देन 2 billion लाइब्रेरीज. लाइब्रेरीज क्या होती है? जो वहाँ की करेंसी यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरीज. That is France currency. The lenders who gave them the money on credit now began to charge 10% of interest on the loan. अब क्या हुआ? उन लोग जो मनी लैंडर्स थे उनको मालूम था कि जो आपका ये फ्रांस हैगा ये अनेबल टू पे द अमाउंट, सो दे स्टार्टेड चार्जिंग 10% ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम देम. Due to which the France government began to increase taxes. अब क्या हुआ? फ्रांस गवर्नमेंट के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था. वो अपने लोगों से क्या करने लग गए? टैक्स इंक्रीज करने लग गए. In the 18th century, the French was divided into 3 sections. हमको ये मालूम है कि जो आपका जो सोसाइटी ऑफ फ्रांस was divided into 3 sections. पहला कौन था आपका? क्लर्जीमैन. सेकंड थे आपके नोबल्स या फ्यूडल्स. और थर्ड क्या था आपका? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, पेजेंट्स, आर्टिशियन, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट एक्सेट्रा. ओके. फ्रेंच पॉपुलेशन. और अब क्या हुआ? धीरे धीरे फ्रेंच पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होने लग गई. और जो इंक्रीज पॉपुलेशन थी उनका क्या डिमांड था? कि उनको फूड ग्रेन्स चाहिए खाने के लिए. प्रोडक्शन कुड नॉट फुलफिल द डिमांड. जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था वो उनकी डिमांड को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा था.
तो रिज़ल्ट क्या हुआ, इन लोगों ने जो फूड ग्रेन्स थे उसके मतलब प्राइस को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, और उसके कारण जो लोग थे वो किससे हो गए, अनॉय, फ्रेंच गवर्नमेंट से अनॉय हो गए, मतलब उनको फ्रेंच गवर्नमेंट पे क्या आने लग गया, गुस्सा आने लग गया। वर्कर्स वर मोस्टली एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप, द वेजेस वर फिक्स बाय द ओनर। अब जो ये वर्कर्स थे वो पहले तो लैंड पे काम करते थे, तो लैंड पे काम करते थे, अब क्या हुआ, अब उनसे मतलब जो उनको वेजेस प्रोवाइड हो रहे थे वो उनके लिए क्या थे, इनसफिशेंट थे, उनसे वो लोग प्रॉपरली ब्रेड भी नहीं, मतलब खाना भी नहीं पूरी तरीके से खरीद पा रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसकी कॉस्ट को क्या कर दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। किंग ने टैक्सेशन मतलब लगा दिए थे इन ऑर्डर टू bear the expense which was done in the American war and all. Okay. The wages were fixed by the owners. They did not increase the wages, which resulted a gap between the poor and the rich. अब बेचारे जो वर्कर्स थे उनको बहुत दिक्कत आ रही थी खाने में, तो अब क्या हुआ, जो ये गैप था बिटवीन द रिच एंड द पुअर became more. The situation became bad to worse. Due to the drought or the hail reduced the harvest. अब क्या हुआ, ये तो थी पहले तो वो किंग की तरफ से बड़े परेशान थे, जो वर्कर्स बेचारे काम कर रहे थे खेत के अंदर, जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी किससे ख़राब हो गया, अकाल पड़ने लग गया, बरसात होने लग गई ज़्यादा, तो जो आपके अनाज का प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। All these conditions led to the crisis in France during the old regime. जो ये सारे फैक्टर्स थे वो एक तरीके से क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे थे during the old regime. Okay class, revise it fast and let me know whether you have understood or not, then I am going to move further. Yes, read this properly and let me know that whether you have understood all the points or not. I have made very simple notes so that you can understand this very important topic nicely. Yes, go through fast. Yes. Any problem to you? So, what we have studied till now? First, about the society, and second, how the background was laid for the revolution. Now we are going to move further. A growing middle class put an end to the privileged class. जो आपकी मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी, पावरफुल बन रही थी, उन लोगों ने कैसे जो फर्स्ट क्लास क्लर्जी क्लास थी उनका एंड करा. Yes, now let us begin. Yes, the peasant and the workers protested against the increase in the tax and the food shortage. जो peasant थे, workers थे, उन लोगों ने अपनी आवाज़ रेज करी against the increase in the tax और जो उनको food की कमी हो रही थी. They lacked the method and the programs to carry out full-scale measures that would bring social and economic चेंज इन द सोसाइटी. जो लोग जो पेजेंट थे ना, उनके पास प्रॉपर मेथड, प्रॉपर प्रोग्राम नहीं था जिससे कि वो अपनी बात लार्ज स्केल पर कह सकें और एक तरीके से सोशल और इकोनॉमिक चेंज ला सकें फ्रेंच सोसाइटी में. और तो उन्होंने ये काम किसके लिए छोड़ा? For the educated class to bring the new ideas. This work was left to the educated class to bring the new ideas. Okay class? समझ आया आप लोगों को? ठीक है, चलो. 18th century saw the rise of the social group called the middle class, who became wealthier by maintaining trade relation with overseas.
अब क्या था, जो 18th सेंचुरी के जो लोग थे ना मिडिल क्लास के, वो धीरे धीरे क्या हो गए, वेल्दी मतलब अमीर बनने लग गए। और उन्होंने कैसे अमीर बने, बाय मेंटेनिंग ट्रेड रिलेशन विद द overseas. They started manufacturing goods such as woolen and silk textile. उन्होंने goods manufacture करने लग गया। कौन कौन सी थी, वुलन करी थी और silk textile करी थी। Beside merchants and the manufacturers, the third class, which consists of the lawyer and the administrative group, did not believe in any social group मार्क्ड बाय पर्सनस बर्थ। जो ये आपके जो एजुकेटेड लोग थे वो लोग ना जाति पाति को वो मानते नहीं थे। उनके अनुसार जो पर्सन की अचीवमेंट है वो उसका सिंबल है। They laid stress on the freedom, equality and believe in opportunities for all. उनके हिसाब से सबको इक्वली फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सबको प्रॉपर मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, देन दे आर गोइंग टू फ्लरिश इट वेल। Yes, philosophers like John Locke, Voltaire and Rousseau came forward. अब इस टाइम पीरियड में फिलोसफर्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था, जैसे कि जॉन लॉकी, वॉल्टेयर एंड रूसो केम फॉरवर्ड। John Locke rejected the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. जो जॉन लॉकी थे उन्होंने क्या करा था कि वो एब्सोल्यूट राइट जो जैसे कि कहा जाता था कि भगवान मतलब जो ये किंग है होल एंड सोल है, उसने इस फिलॉसफी को बिल्कुल क्या करा था, he was totally against of it. Rousseau supported him by saying government should be based on the social contract बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। और इसकी बात को रूसो ने आगे लेके गया। वो कह रहा था कि जो गवर्नमेंट बनती है ना उसके अंदर क्या होना चाहिए, सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स। इज़ इट क्लियर? तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी की लेआउट हो रहा था। Another philosopher, Montesquieu, said that the division of power between the three organs of the government, जो Montesquieu था उसने बोला कि जो गवर्नमेंट है उसके 3 organs होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये जो मॉडल था यूएसए में जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी आफ्टर अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटेन, इट वाज फॉलोड बाय USA also. These ideas of philosophers were discussed in saloon coffees. अब क्या हुआ, जो ये आइडियाज़ जो ये लोग बता रहे थे, जो ये फिलोसफर्स बता रहे थे, वो किसके अंदर डिस्कस होने लगे, कॉमन जगह पे, सलून्स में होने लग गए, कॉफ़ी हाउस में होने लग गए। People expressed their ideas among each other. They started printing these ideas in the newspapers, books, so that people may read. और ये इन लोगों ने क्या करा, जो अपने आइडियाज़ थे वो किसके थ्रू, मतलब बुक्स के अंदर प्रिंट करने लग गए, न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट करने लग गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेट कर सकें। सो वी कैन सी हाउ द प्लेटफॉर्म वॉज रेडी फॉर द रेवोल्यूशन। अब पहले हम लोगों ने क्या देखा, सोशल लाइफ देखी, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा कि वहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम था वो कैसा था। और फिर थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा कि ना कैसे जो मिडिल क्लास थी वो अब मतलब आ रही थी सामने। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट। और अब ये कैसे प्लेटफॉर्म रेडी हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई है, दैट वी आर गोइंग टू सी इट नाउ। ओके क्लास, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। Louis XVI summoned the Assembly on May 5, 1789 to pass a proposal for new tax. It was held in Versailles, or 300 representatives came from the first and the second section of the society. They were seated in the hall, and the third section of society, there were 600 people
who were standing behind. अब क्या हुआ, लुइस 16 ने एक असेंबली कॉल करी और उसमें क्या इंट्रोड्यूस करा उसने, न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने चाहे। जो 300 रिप्रेजेंटेटिव थे वो कहाँ से आए थे, फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से थे और वो अपने आप को हाई क्लास समझते थे, तो दे वर सिटिंग डाउन इन द हॉल। और जो थर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो कॉमन पीपल का था, पेजेंट्स का था, लेबरर्स का था और लॉयर्स और ये मर्चेंट्स वगैरह का था। दीज पीपल वर स्टैंडिंग बिहाइंड। Among them, all the educated persons were allowed to enter the hall, whereas peasants and artisans and women were not allowed to enter the assembly. इसमें भी इन लोगों ने restricted लोगों को अंदर आने की परमिशन दी थी। उनमें कौन थे, सिर्फ educated persons थे। जो peasants थे, artisans थे and the women थी, उनको अलाउ नहीं था कि वो असेंबली के अंदर एंटर होएं। ओके ओए फिर क्या हुआ, लुइस 16 wanted to impose the tax but the third section of the society demanded for voting. अब क्या था, वो इंट्रोड्यूस कर रहा था टैक्स, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस कर रहा था। फर्स्ट और सेकंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो उससे एग्री हो रहा था, लेकिन जो थर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब क्या होनी चाहिए, आपकी वोटिंग होनी चाहिए। This was one of the principles of democracy. When Louis XVI refused to accept the third section of the society view, they boycotted the assembly. अब क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन तो मान गए थे, लेकिन जो थर्ड सेक्शन था वो लोग माने नहीं थे, तो उनको बोला ठीक है, you can go out of the assembly. Now what happened, the third section of the society became the spokesman of the entire France. जो ये third section of the society था ये पूरे फ्रांस की क्या बन चुका था, अब आवाज़ बन चुका था। They assembled on 20 June in the hall of tennis court in the ground of Versailles. They themselves announced for the National Assembly and did not move back until they have drafted the Constitution for France. अब इन लोगों ने जो थर्ड सेक्शन में थे उन्होंने एक असेंबली बुलाई 20 जून को, और वो कहाँ पे रखी थी असेंबली, इन द हॉल ऑफ टेनिस कोर्ट। और उन्होंने एक अनाउंसमेंट करा था कि जो ये नेशनल असेंबली हैगी है ये जब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए ड्राफ्ट नहीं हो जाएगा। और इसके लीडर्स कौन थे आपका, मीराबोई एंड एबी सियाज। दे वांटेड टू रिमूव द फ्यूडल क्लास फ्रॉम द सोसाइटी। और अब उनका क्या एम था कि जो ये नोबल क्लास है इसको रिमूव करा जाए। दे पब्लिश देयर जर्नल्स and deliver speeches to the crowd who have assembled there. अब क्या हुआ, वो जो वहाँ पे क्राउड असेंबल हुआ था उसके सामने उन लोगों ने क्या करा था, अपने वो जर्नल्स और अपनी स्पीचेस डिलीवर करी। पेरिस वॉज टर्न इन टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है बैड स्टेट के अंदर, बैड स्टेट के अंदर वो हो गया था। और किंग ने ऑर्डर करा था अपने सोल्जर्स को टू मार्च इन द सिटी। और जब वो सोल्जर्स मार्च हुए सिटी में तो एक ऐसे अफवाह फैल गई कि ना किंग ने ऑर्डर दे दिया कि वो सिटीजन्स को मारो। रिवोल्ट ऑफ विच अब क्या हुआ, रिवोल्ट ब्रोक आउट हो गया। 7,000 men and women gathered in front of the town hall to suppress the military forces. अब 7,000 men women आ गए फ्रंट के अंदर, टाउन हॉल के अंदर, और उन्होंने क्या करा, ये किसको रोकने लगे, मिलिट्री फोर्सेस को रोकने लगे। दे बर्न मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मैनी पीपल वर प्रेजेंट, several hundred people marched towards the eastern Paris and attacked the fortress of the prison Bastille. अब क्या हुआ, जो कुछ लोग थे उनमें से वो ईस्टर्न पेरिस की तरफ गए और एक वहाँ पे जेल था जहाँ पे लोगों को बंद करा हुआ था, वहाँ पे उन्होंने अटैक बोल दिया। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, जो जेल का ओनर था, कमांडर था, ही वॉज मर्डर्ड। और जितने भी लोग जेल के अंदर थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। The place of Bastille was hated because it symbolized
और ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द किंग। जो ये प्लेस ऑफ बेस्टाइल थी ना, वो ना ये एक जगह थी जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे पावर ऑफ द किंग चलती थी। मोर riots was seen throughout the country. People revolted against the high price of bread. He realized that in order to calm down the people, he have to abolish the feudal system. अब क्या हुआ? अब देखा कि जो ये भीड़ है ये काबू में नहीं आ रही है। अब लोगों को शांत करने के लिए किंग ने क्या डिसाइड करा कि वो ये फ्यूडल सिस्टम को अवॉइड मतलब अबॉलिश कर देगा। अब उनको भी हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे जैसे कि ऑर्डिनरी लोग पे कर रहे हैं। और अब जो अब कोई जैसे पहले तो बहुत सारी लैंड दे दी जाती थी प्रीस्ट को, चर्चेस के प्रीस्ट को, लेकिन अब उनसे भी वो ले ली और उनको भी अब कॉमन मतलब कॉमन पीपल की तरह टैक्स पे करने के लिए परमिशन दे दी। तो ये सारी जो बातें थी ना, ये सब इसके मतलब कोई मिडिल क्लास के फेवर में तो जा ही रही थी, बल्कि इसके कौन इसके अगेंस्ट हो गए? आपके फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो रिजल्ट क्या हुआ? उन लोगों ने किंग के ऊपर मतलब हमला बोल दिया और in this the king was assassinated. With I have discussed with you the various point in my lecture, that is the social life, and background, what was the background of the revolution, and then a growing middle class, and which end the privileged class, and then I have discussed the beginning of the revolt of French Revolution. So children, I have prepared my notes very nicely so that you can understand the each and every topic, each and every point of this topic very nicely. This chapter is very important from your examination point of view. Many questions come from this chapter. So I am now giving you certain homework which you have to solve it. Yes. Describe about the social life of France before the French Revolution. जो हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है ना, सोशल लाइफ ऑफ फ्रांस बिफोर द फ्रांस रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताए हैं दैट आपको बताना है। जैसे कि वो पुरानी जो सोसाइटी थी, इट वाज कॉल्ड द ओल्ड रिजीम, और जो फ्यूडल सिस्टम था ऑफ द मिडिल क्लास वाज प्रेवलेंट, एंड द वर्कर्स वर कॉल्ड द वसाल्स. फ्यूडल्स वर गिवन द पीस ऑफ लैंड इन रिटर्न फॉर सर्विंग द किंग. और फिर उसके बाद आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट में क्लर्जी मैन थे, सेकेंड पार्ट में किंग था, थर्ड पार्ट में बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, लॉयर्स थे, पेजेंट्स थे, आर्टिशंस एंड लैंडलेस लेबर्स थे। तो एक बात सुन लो बेटा, आपकी ये जो हिस्ट्री है ना, अगर आप पॉइंट्स में लिखोगे ना तो आपको बहुत ईजिली याद होगा, प्लस आप बहुत ईजिली अंडरस्टूड होगे। इसके जो मैंने आपको 11 पॉइंट्स रह गए वो सारे इस आंसर में आएंगे। ठीक है चिल्ड्रन। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू नो अबाउट लुइस 16। अब इसका बैकग्राउंड ऑफ रेवोल्यूशन में मैंने लुइस 16 के बारे में बताया है। लुइस 16 बिलोंग टू अ बॉर्बन डायनेस्टी। ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। फिर 20 ईयर्स की एज में वो किंग बन गया। फिर उसके बाद उसने ट्रेजरी एम्प्टी थी, कैसे उसने अमेरिकन्स की हेल्प करी थी अगेंस्ट द ब्रिटेन एंड ऑल, दिस ऑल यू हैव टू डिस्क्राइब इट। और उसके अलावा कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मनी लैंडर्स ने बढ़ा दिया था, और कैसे इसने न्यू टैक्स इम्पोज करे थे, दैट ऑल यू हैव टू डिस्कस इन दिस पॉइंट। ओके क्लास। एंड माय थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ग्रोइंग मिडिल क्लास पुट एन एंड टू द प्रिविलेज क्लास। अब इसमें आपको बताना है कि जो ये पेजेंट्स वगैरह थे, ये लोग अगेंस्ट थे किसके, इंक्रीज इन टैक्स के, फूड शॉर्टेज के। फिर वो उन्होंने एक प्रोग्राम लेआउट करना चाहते थे लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों ने किसको चार्ज दे दिया था, एजुकेटेड लोगों को चार्ज दे दिया था। जो आपके फिलोसफर्स हैं ना, फिलोसफर्स जिसका अभी अपन ने डिस्कस करा था, जॉन लोकी, वॉलेटियर एंड रूसो। फिर जॉन लोकी की क्या क्या सेइंग थी, रूसो की क्या सेइंग थी, और फिर उन मतलब ये अब मॉन्टेस्क्यू का क्या था, ये सब आपको इसके अंदर बताना है। तो दिस इज़ हाउ आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन माय लेक्चर,
so that you can understood it nicely. बेटा एक बार मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन वापस समझाती हूँ, आप सुन लो. 18th सेंचुरी में राइज ऑफ सोशल ग्रुप हुआ था मिडिल क्लास का, और वो बहुत वेल्दियर बनते जा रहे थे, ट्रेडमेंट्स क्यों, और उनके वो कैसे वेल्दियर बने, क्योंकि उन लोगों ने ट्रेड रिलेशन मेंटेन करे. फिर उसके बाद उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर करी, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल की. फिर उसके बाद और जो मर्चेंट्स वगैरह थे वो सोशल ग्रुप के अंदर बिलीव नहीं करते थे. उनके अनुसार जो पर्सन की क्वालिटी होती है उसी के हिसाब से उसको पहचाना जाना चाहिए एंड ऑल. फिर जो न्यू वो फिलासफर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनके बारे में आपको बताना है. फिर जो आपकी मॉन्टेस्क्यू ने बताया था कि गवर्नमेंट होनी चाहिए थ्री टाइप की, थ्री उसके अंदर वो ऑर्गन्स होने चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. वो सब आपको बताना है कि कौन से यूएसए ने कैसे अडॉप्ट करा था एंड ऑल. और फिर जो सारी बातें थी वो डिस्कस होने लगी और कॉमन प्लेसेस पे, जैसे कि सैलून, कॉफ़ी हाउस, और पीपल अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने लग गए. फिर वो लोग अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट निकालने लग गए और बुक्स वगैरह पब्लिश करने लगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके. इस तरीके से मतलब चेंज आ रहा था मिडिल क्लास के अंदर. तो बेटा आप लोगों को वर्क सबमिट करना है सैटरडे को. लिसन टू द लेक्चर केयरफुली एंड नाइसली, twice listen to it and try to answer in points. It will be easier for you to learn it nicely and all. So with this I end my lecture and my homework. So do it well and have a nice day. Okay, bye.